امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا. کہا ایران کے نمائندوں کا جواب پڑھا جو مجھے پسند نہیں آیا. ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. ایران 47 سال سے امریکہ سمیت پوری دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے. مذاکرات میں تاخیر پر تاخیر کی جاتی ہے. ایران 47 سال سے ہمیں انتظار کرا رہا ہے اور وہ ایک بار پھر امریکہ پر ہنس رہے ہیں. وہ اب مزید نہیں ہنسیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا بات چیت کا مقصد ایرانی قوم کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا دفاع ہے. مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں. دشمن کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے. بھارت کی عبرتناک شکست. معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں شاندار تقریب. صدر آصف زرداری نے کہا بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا جواب سنہری باب ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر دھاک بٹائی. پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا. عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا 10 مئی کو معرکہ حق سے منسوب کرنے کا اعلان. کہا ہر سال 10 مئی کو بغیر تعطیل جوش و جذبے سے یوم معرکہ حق منایا جائے گا. پاکستان مونومنٹ پر تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت. جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے. ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا. اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا. ہمارے شیر دل جوان میدان میں اترے اور شاہین جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے. ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا. 4 گھنٹے میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا. قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور شاہینوں کے ذکر کے بغیر یہ باب مکمل نہیں. ہمارے دشمن یہ جان لیں آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. الحمدللہ آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے. دشمن جان لے آئندہ کسی بھی مہم جوئی کے نتائج خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خبردار کر دیا. کہا پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے. بھارت کا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں. مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں. پاکستانی قوم ہماری طاقت اور ہم قوم کی قوت ہیں. پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے. دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے. افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. بھارت روایتی جنگ میں ناکامی پر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے. افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے. ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا. منصوبے میں جنگی نقصانات کا مکمل ہٹ جانا اور تمام پابندیاں ختم کا مطالبہ شامل. منجمد اثاثوں کی بحالی، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شامل. ایران کا اپنی جوہری تنصیبات کے خاتمے سے انکار. ایران کے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے دعوے کی تردید. ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران انتہائی افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادہ ہے. ایران کا موقف ہے کہ آبنائے ہرمز بتدریج کھل سکتی ہے. پہلے جنگ بند کی جائے. ایران سے آئندہ 30 روز میں جوہری معاملات پر بات کی جائے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। हमने फरीकैन को आर्जी जंगबंदी पर कायल किया। फरीकैन को 1979 के बाद पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर खुसूसी तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। बच्चों ने मिली नगमों के जरिए शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। शुरका अबदीदा हो गए। शहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पानी 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अपने आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़िर है। और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्काए हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक में 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हक फतह याब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। मार्का हक की पहली यादगारी तकरीब से खिताब। कहा, हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसकी कीमत भारत आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। जब हक और बातिल मुकाबिल हों तो फतह हमेशा हक का मुकद्दर बनती है। मार्का हक के शुहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील और नतीजा खेज फजाई जंग की मुनफरिद मिसाल कायम की। दुश्मन के न सिर्फ कई जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, बल्कि बेशुमार अस्करी तनसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों को जमीन तक महदूद कर दिया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बुनियानुम मरसूस है। मुल्क की अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कौम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती है। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के जरिए खित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल के पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने अमरीका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नुमाया किया। अमरीका और ईरान बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा सफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अमन की कामयाबी के लिए फरीकैन के दरमियान मुस्बत राब्तों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की अमन के इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत की तारीफ कहा। अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दौरा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करेगा। मैं इस मौके पर खुसूसन सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, कौमी और सूबाई सियासी क़यादत और तमाम तर सियासी जमातों का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ, जिनकी लाज़वाल सियासी बसीरत, दूरअंदेशी, रहनुमाई और अज़्म व इस्तक़ामत से पाकिस्तान को ये वाज़ेह फ़तह नसीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक में कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। हर पाकिस्तानी वतन के दिफा के लिए डट गया। कौमी क़यादत और सियासी जमातों का मशकूर हूँ। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी और सूबाई काबीना और सियासी जमातों समेत सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मीडिया और हमारे नौजवानों ने भी दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन्स, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। कश्मीरी बहन भाइयों को आज के दिन फरामोश नहीं कर सकते। कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। गैर मुल्की सफीरों जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। कचहरी चौक रावलपिंडी को मार्का हक स्क्वायर का नाम दिया गया। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 5 अंडरपास और 2 पुल शामिल। मरियम नवाज का एनेक्सी चौक था GPO चौक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का दौरा। कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की बैरक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। रैकोडेक मंसूबे की तकमील के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अली परवेज मलिक ने कहा, रैकोडेक मादनियात के शोबे के लिए फ्लैगशिप मंसूबा है। सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के मौके बढ़ेंगे। टोबा टैक्सिंग में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अयूब गाधी समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुस्लिम लीग नून के MPA के डेरे पर हुई। MPA इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। IG पंजाब ने RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।